We sit at your feet to worship you, Lord. We bow down before you, Father. We welcome you, Lord. We welcome you, Father. You dwell within our praises. We thank you for your word says that you inhabit the praises of your people. Thank you, Lord. Thank you, Father. Our heart is yours forever, Lord. We worship you, Father. There's none like you. There's none like you. There's none like you, Jesus. We open our hearts. We come in your presence with pure hearts, Lord, to lift up your name. We thank you for your mercy. We thank you for your grace. We thank you for your love, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. There's none like you. You are still our first love, Lord. You are the only one whom we praise. You are the only one whom we exalt, Jesus. You are the only one whom we worship, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. I'm returning to the secret place, just an altar and a flame. Love is found here in a sacred space. I hear your voice, I see your face.
Jesus. Our heart is yours, Lord. Everything that we do is for your glory, Lord, for your honor, for your praise, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father. Let's all tell him, my heart burns for you, Lord. And my heart burns for you. And my heart burns. Oh, it burns for you. And my heart burns. It burns for you. And my heart burns for you. And my heart burns. It burns for you, Jesus. And my heart burns for you. And my heart burns. It burns for you, Jesus. Oh, and my heart burns for you. And my heart burns for you. La la and my heart burns. It burns for you. And my heart burns for you. And my heart burns. It burns for you, Jesus. And my heart burns. Oh, it burns for you. And my heart burns. Oh, it burns for you. La 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 and my heart burns. It burns for you. Only for you, Lord. Oh, it burns for you, Jesus. Only for you, Father. Oh, thank you, Lord. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. Everything, Father. You are worthy of it all.
You are worthy of it all. You are worthy of it all, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, you deserve the glory. Thank you, Father, for from you are all things, Lord, and to you are all things, Father. Everything that we have is yours, Lord. Everything that we have, let it be used for your glory, for your honor, and for your praise, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Let this worship rise as an aroma to you, Father. Let each and every one of our hearts rise to you, Lord, as an aroma, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father. We love you, Lord. We worship you, Father. You increase, we decrease, Father. You be exalted high, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. You deserve the glory, Lord. Thank you, Lord. We offer you this worship. Accept it as a pleasing sacrifice, Lord. In Jesus' name I pray, amen. पोचव, कारण की कोणीच नाही माझ्यासोबत. मला कोण येणार आहे घ्यायला? खरंच प्रभू खूप, परमेश्वर खूप चांगला आहे की मला तो रस्ता पार केला. मी व्यवस्थित घरी पोचली. मी प्रभूला खूप खूप कोटी कोटी धन्यवाद देते. खरंच खूप महान आहे. एवढं संकट येतात, एवढे प्रॉब्लेम्स आहे, पण प्रभू ह्या वर्षी खरंच गेल्या वर्षापासून या वर्षापासून प्रभूचा हात बघते. अद्भुत परमेश्वर आहे. मी त्याचा अनुभव घेतला आहे. खूप चांगला आहे. त्याची महिमा कितीही केली तरी कमीच आहे. मला खूप सांभाळतो. मी एवढी कमजोर असताना मला एक शक्ती दिली, सामर्थ्य दिलं, म्हणून प्रभूला खूप खूप धन्यवाद. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं अर्चना के लिए. परमेश्वर ने उसे सुरक्षित अपने घर पर लौटा कर लेकर आया. प्रभु बहुत अच्छा है और सच में जब हमें कोई मदद नहीं होती वो हमें कभी नहीं छोड़ता. और हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन वो आपको हाथों में लेकर चलता है. प्रेज़ द लॉर्ड. परमेश्वर बहुत अच्छा है और हम धन्यवाद देते हैं. अर्चना को प्रभु ने अद्भुत रीति से संभाला और वैशाली के लिए हम परमेश्वर की दया, उसका अनुग्रह को मांगते हैं. उसके लिए सब कुछ संभव है. तो आज पूरा यही गवाही है कि परमेश्वर ने हर एक को सुरक्षित लौटा कर लेकर आया. कितना अद्भुत परमेश्वर है. वो हम सबको अपने पंखों तले छुपा कर रखता है. वो बहुत अच्छा खुदा है. प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. वो सब कुछ कर सकता है. कुछ भी असंभव नहीं है. तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है खुदा. ओ बहुत बड़ा पहाड़ हमारे सामने है, पर हम जानते हैं कि तू हमें हाथ उठाकर उसे पार कराएगा. वो क्रूस की चमकाई जो आज भी हमारे लिए, वो लहू, यीशु मसीह का लहू आज भी जो हम सबों के लिए भलाई को कहता है, क्योंकि जीवन केवल तू ही दे सकता है खुदा. कोई डॉक्टर, कोई दवाई नहीं दे सकता. लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा वैद्यों का वैद्य, हर डॉक्टरों को बनाने वाला परमेश्वर है. हर डॉक्टरों में श्वास फूंकने वाला तू ही खुदा है. आज तेरे बच्चे में तेरे उस श्वास को मांगते परमेश्वर, जो कभी न खत्म होने वाला है. हर एक अपशब्द, हर नेगेटिव्स को यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं. तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है खुदा. ओ हम
जानते हैं कि तू हमें उखाब की तरह उन लहरों के ऊपर उड़ा कर लेकर चलेगा। हम डरते नहीं परमेश्वर, क्योंकि तू हमारे साथ है खुदा। तू हमारा दृढ़ गढ़ है, तू हमारी चट्टान है, तू मजबूत हमारा गढ़ है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने कहा कि तू अपने मन को खोलकर मुझसे बातें कर। आज हम अपने मन को खोलकर तेरे सामने आते खुदा। तेरे बच्चे के ऊपर पूरी चंगाई को कहते हैं, इस कलीसिया के ऊपर तेरे चंगाई को मांगते हैं। हर एक की आशा तू है परमेश्वर, हर आशा को पूरा करने वाला तू खुदा जीवित है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हर बच्चे को तू हाथ पकड़ कर चलाता है, हर बच्चे के मुख में तेरे शब्दों को, तेरे अल्फाज को भरता है। हम धन्यवाद करते हैं। ओ बड़े बड़े राजाओं के सामने तू खड़ा करता है। हम धन्यवाद करते हैं। तेरे बच्चों की अगुवाई करने वाला परमेश्वर, हम तेरे सामने झुकते हैं, तेरे सामने नतमस्तक होते हैं खुदा। तू भला है, तेरी करुणा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज तेरे दास को तेरे हाथों में देते हुए, इन सारे बच्चों को तेरे हाथों में देते हुए, हर परिवार में तेरे सुख शांति को बोलते हुए, ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के अतुल्य नाम से बोलते हैं। सुन ले पिता। Greetings to you all in Jesus' name. आप सबों को यीशु मसीह के नाम से अभिवंदन। God is good. परमेश्वर अच्छा है। I believe as parents are mindful of their children, मैं विश्वास करता हूँ कि जैसे माता पिता अपने बच्चों को संभालते हैं, उनका मन उनके लिए है, so in the same way God, उसी तरह से परमेश्वर का मन हमसे बड़ा है। God is good. परमेश्वर अच्छा है, Is mindful of you. उसका मन आपसे बड़ा है, He cares for you. वो आपको संभालता है। What a wonderful God we have. क्या तो अद्भुत परमेश्वर है हमारा। We know what really God is. हम जानते हैं कि परमेश्वर सच में क्या है। We live because of Him. हम उसके कारण जीते हैं। Our life is like a battle, और हमारा जीवन युद्ध के समान है, and in this battle, और उस युद्ध में God wants to give us victories. परमेश्वर हमें विजय देना चाहता है। In every place, हर जगह पर, every step, हर कदम में, every battle we fight. हर जो युद्ध हम लड़ते हैं, He doesn't want us to lose even one battle, one single battle. वो नहीं चाहता कि हम एक एक भी युद्ध हार जाए। That's why he said in Joshua 1st chapter 7 to 9, इसीलिए यहोशू पहला अध्याय 7 से 9 में वो कहता है that let not this book be away from you. कि ये जो पुस्तक है वो तेरे मन से न हटने पाए। Meditate on it day and night. इसे दिन और रात मनन कर, Do according to it. और इसके अनुसार कर। Don't move to left or right. दाएं और बाएं न मुड़, Don't take your own ways. अपने खुद के मार्गों पर मत चल, Don't fear. डर मत, Do not be afraid. डर मत। You should be strong. आप सामर्थशाली होना चाहिए। That's why in Deuteronomy 23rd chapter, इसीलिए व्यवस्था विवरण 23वां अध्याय 9th verse, let us read. 9वां वचन आइए हम पढ़े। Here he says, when you are encamped against your enemies, then you shall keep yourself from every wicked thing. जब तू शत्रुओं से लड़ने को जाकर छावनी डाले, तब सब प्रकार की बुरी बातों से बचे रहना। There is a strong relationship between winning the battles and protecting us from wickedness. बहुत बड़ा रिश्ता है हमें युद्ध में विजय, दुष्टता और विजय। Wicked can't get victories. दुष्ट को विजय नहीं मिल सकती। If you want victories, अगर आपको जय चाहिए, then you have to work in your own life. तो आपको आपके खुद के जीवन में काम करना पड़ेगा। You have to work on yourself, आपको अपने आप पर काम करना पड़ेगा, or else you will lose battle. या तो आप युद्ध को हार जाएंगे।
when you are encamped against your enemies, जब तुम शत्रुओं से लड़ने को जाकर छावनी डाले, you have to be very careful. आपको बहुत संभालना है। And our Christian life, और हमारा जो क्रिस्ती जीवन है it is always battles. वो हमेशा युद्ध है। If there is no battle, अगर युद्ध नहीं no victories, तो कोई विजय नहीं, no defeats. कोई हार नहीं। If battles are there, अगर युद्ध है then we can think about victory and defeat. तो हम सोच सकते हैं विजय और हार को। Always battle speaks of two things. युद्ध जो है दो बातों को दर्शाती है, हार या जीत, है ना? Two things. दो चीजें। What are that two things? वो दो चीजें क्या है? हार या जीत। What you want, victories or defeat? आपको क्या चाहिए? विजय चाहिए या हार चाहिए? Definitely, God wants to bless us with victories. जरूर परमेश्वर जो है हमें जीत देना चाहता है। So, Paul is saying in Ephesians 6th chapter, इसीलिए पौलुस कहता है एफिसी करास पत्र 6वें अध्याय में that put on the whole armor of God. कि परमेश्वर के पूरे हथियारों को तुम बांध लो। He wants to bless us with victories. वो हमें विजय से आश्रित करना चाहता है। That's why he says when you go into the battle, इसीलिए वो कहता है जब तुम युद्ध में जाओ get rid of wickedness. तो दुष्टता से दूर हो रहो, बुरी बातों से बचे रहना। Very careful. अब बहुत ही संभालना Paul is चाहिए। saying put on the armor of God. पौलुस कहता है कि परमेश्वर के हथियारों को बांध लो, Because now our struggle is not against flesh and blood. क्योंकि अब हमारी जो कश्मकश है वो मांस और लहू से नहीं You are है। end time ministers. अंत समय के आप सेवक हो। You are end time ministers. जब आप अंत समय के सेवक हैं, Many victories are going to come to your life. तो आपके जीवन में बहुत सारी विजय आएगी। Your every decision is your victory or defeat. और आपका हर एक निर्णय जो है वो जीत या आपका हार है। Where you want to be, this side or that side. आप कहाँ रहना चाहते हैं, ये साइड या वो साइड, In victory side or defeat side. विजय की साइड या हार के साइड, Where you want to be. आप कहाँ रहना It's चाहते हैं, all depend upon you. ये सब आपके ऊपर निर्भर है। God wants you to be victorious. परमेश्वर चाहता है कि आप विजयशाली हो। And Paul says, a fight is not against flesh and blood. और पौलुस कहता है कि हमारी मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं। With what we are fighting? हम किससे युद्ध करते हैं? What is a fight? हमारा युद्ध क्या है? Based on किस पर बेस्ड है? how one can be victorious. कैसे कोई विजयशाली हो सकता है? In what your victories depend upon. और आपकी विजय किस पर निर्भर है? Your victories are depend upon the word of God. आपकी विजय परमेश्वर के वचन पर निर्भर है। So your yuddha is against not flesh and blood. और आपका युद्ध जो है वो लहू और मांस से नहीं है। Here Paul is saying यहाँ पे पौलुस कहता it's है against the rulers ये तो अधिकारियों के साथ है and against authorities. It's against the powers of this world's darkness. इस दुनिया के अंधकार की शक्तियों के साथ है। So how much more we need to be cautious? तो हमें कितना जागरूक रहना पड़ेगा, How much more we need to be alert? हमें कितना जागरूक रहना पड़ेगा। And Paul here says, यहाँ पे पौलुस कहता है our fight हमारी युद्ध is against the spiritual wicked forces in heavenly places. जो स्वर्गीय स्थानों पर दुष्ट दुष्ट शक्तियों के शक्तियों साथ. के विरुद्ध है। Here we are special people. पर यहाँ पर हम खास लोग हैं। That's why he's saying take up the full armor of God इसीलिए वो कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो and give no ground to the enemy. और दुश्मन को कोई भी जगह नहीं दो। After doing everything, सब कुछ करने के बाद stand. खड़े हो जाओ, Stand firm. स्थिर खड़े हो जाओ। You know all this message. Take the belt of truth. आप जानते हो ये सब संदेशे को कि सच्चाई का कमरबंद बांध लो And addition to this, और इससे जुड़कर have the shield of faith.
विश्वास की डाल को रखो, and with which you can extinguish the fiery darts of the enemy. उससे आप दुश्मन के जो अग्नि बाण है उसे रोक सकते हो। Take up the helmet of salvation. उद्धार के मुकुट को पहनो, Take the spirit of sword of the spirit. आत्मा के तलवार को लो, That is the word of God. वो परमेश्वर का वचन है। Pray in the spirit all the times. हर समय आत्मा में प्रार्थना करो। I hear people saying, मैं सुनता हूँ लोगों को कहते हुए, आधा घंटा प्रेयर किया तेरे लिए। आधा घंटा तेरे लिए प्रार्थना किया, 2 days I prayed for you. 2 दिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना की। Prayer is a battle. प्रार्थना जो है युद्ध है, We need to continuously pray. हमें लगातार प्रार्थना करनी चाहिए। Pray in season, pray out season. मौसम हो या न हो, प्रार्थना करते रहना Pray चाहिए। continuously. लगातार प्रार्थना करनी Always have a चाहिए। mind of prayer. हमेशा प्रार्थना का मन It's a होना battle, it's a चाहिए। battle. You're praying, you're praying, you're praying. ये युद्ध है, युद्ध है। आप प्रार्थना And कर you're रहे bringing हैं about a great change in the realm. और आप बहुत बड़े बदलाव को लेकर आ रहे हैं वातावरण में। Stay alert वो कहता है कि तुम जागरूक रहो with all perseverance in your prayers. आपके प्रार्थना में जारी रखकर धीरज के साथ Stand. खड़े रहो। But we see many people are slain. पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग घात किए जाते हैं। People look at us as a preachers, लोग हमारी ओर देखते हैं प्रचारक के रूप में, servants of God, परमेश्वर के दास के Priest, रूप में, believers, याजक, विश्वासु, but they are defeated in their talks. पर उनके बातों में वो हारे हुए हैं, Defeated in their lifestyle, उनके जीवन में वो हारे हुए हैं, defeated in their thought realm, उनके विचारों में वो हारे हुए हैं, defeated in their service, उनके सेवा में हारे हुए हैं, defeated among bearing one another. एक दूसरे को सहने में वो हारे हुए हैं। सहन करने में हार गए. Fight is not against flesh and blood. हमारा जो युद्ध है वो लहू और मांस के विरुद्ध नहीं। That old serpent, no? वो पुराना नाग ना, Genesis 3rd chapter, I think 1st verse onwards. उत्पत्ति 3 अध्याय 1 वचन So, हम जब देखते हैं तो that same serpent, वही नाग as he came into the garden, जैसे वो बगीचे में आया, the same way उसी रीति से he is coming. वो आ रहा है। That serpent is crafty. वो जो सांप है बहुत ही धूर्त है, That's why he is saying, इसीलिए वो कहता है get rid of wickedness. बुराई से बच जाओ। Today, I don't want you to focus on put on the things, आज मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि चीजों को पहन लो। but today, what we need to put it off, आज मैं आपसे कहता हूँ कि क्या हमें निकाल देना है, that we need to think. वो हमें सोचना है। What I need to put it off. मुझे समझना है कि मेरे में से क्या निकालना है। नहीं निकाला तो आपने रेडियो को देखा है बचपन में आप लोग असं हलवलं हा रेडिओ लागला का लागला बरं that IC is inside it वो आईसी उसके अंदर है, that will catch that thing which is going in air. वो जो हवा में आ रहा है उसे पकड़ लेगा। लागला कनेक्ट झाला. हवाचे युद्ध आहे अपना. If anything of his is there, अगर उसका कुछ है then defeat is पक्का. तो हार तो पक्का है। If that IC of enemy is there, अगर दुष्ट की आईसी उसमें है then defeat is पक्का. तो पक्का उसमें हार है। You have to be very careful. आपको बहुत ही खबरदार रहना है। In Deuteronomy 23:9 says, व्यवस्था विवरण 23:9 कहता है, if you encamp your enemy, जब तू शत्रुओं से लड़ने जाए then you have to be very careful. तो तू बहुत ही खबरदार रहना। You shall keep yourself from every wicked thing. हर बुरी बातों से तू बचे रहना। क्या करने का आपको? बचे रहना है हर बुरी बात से. किससे बच के रहने का? बुरी बातों से। जीतने का है तो बचे रहो.
हारना है तो गले मिलो बुरी बात को, है ना। सिर्फ चर्च में सॉन्ग गाएगा ये तो चलेगा नहीं। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, लेकिन इट्स अबाउट टू लिव अ लाइफ। पर ये ऐसा है कि ऐसा जीवन जीना है। इफ यू वांट रियली विक्ट्रीज, नो, अगर आपको सच में विजय चाहिए ना, यू नीड टू कीप योरसेल्फ अवे। आपको अपने आप को बचाए रखना है, उसे दूर रहना है। सर्दी झाली, खासी झाली, काय करायचं बेटा? आईस्क्रीम नाही खायचं, बरं का? आईस्क्रीम नाही खायचं. आईस्क्रीम खाल्यानंतर काहीतरी औषध खाऊन खोकला छू बोललं तर कोण शिकवलं? हू टॉट यू? किसने आपको सिखाया? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाओ इलाज से बढ़कर बेहतर है। बेहतर। बचे रहो, बचे रहो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपने आप को संभालो। कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम एवरी विकेड थिंग्स। अपने आप को हर बुरी बातों से दूर रखो। यू आर अलर्ट फॉर योर हाउस। आप अपने घर के लिए बहुत ही खबरदार रहते हैं, जागरूक रहते हैं। यू नॉट अलाउ एनी कचरा। आप कुछ भी कचरा को आने नहीं देंगे। मैगेट्स, कीड़े। यू विल क्लीन योर हाउस। आप अपने घर को साफ करेंगे। क्लीन कैसे करेगा? गिरा के सब धड़ाम धम धड़ाम धम धड़ाम धम। क्लीन करने का नहीं, इसलिए गिराएगा नीचे, है ना। आई सिट ऑन बेड, मैं बिस्तर पे बैठूंगा एंड फ्रॉम देयर आई राइट। और वहाँ पर लिखूंगा। इफ आई डोंट फील एनीथिंग, आई टेयर इट। अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा, मैं उसे फाड़ दूंगा आई थ्रो दैट और ऐसा फेंक दूंगा, बिकॉज़ नो सर्वेंट विल कम। क्योंकि काम वाली आएगी। आई रिमूव एंड आई थ्रो और मैं उसे निकाला और फेंक दिया फ्रॉम देयर ओनली, वहाँ से बिकॉज़ ही, आई नो सर्वेंट विल कम, क्योंकि मैं जानता हूँ कि काम वाली आएगी। एंड फ्रॉम देयर रेखा विल शॉट। वहाँ से ए उठाइए, उठाइए। रेखा चिल्लाएगी, उठाइए उठाइए। अरे अभी साफ करेगी ना। और मैं कहूँगा, अरे वो साफ करेगी ना, व्हाई यू वरी? तू क्यों चिंता कर? पहले तू यू उठा, उठा, उठाइए, उठा। रेखा बोलेगी, पहले से उठा। भाई यू नो, आप जानते हैं क्यों? कचरा करके पर्पसली जो कचरा करता है उसमें कुछ तो तकलीफ है। तो मेरे को समझ में आया थोड़ा थोड़ा कि पर्पसली तकलीफ कर रहा मतलब, कचरा कर रहा मतलब तकलीफ है आप में कुछ। कचरा साफ करना ठीक है, लेकिन कचरा क्यों कर रहा है, दैट मैटर्स अ लॉट। उसका बहुत महत्व है। वी हैव टू बी वेरी अलर्ट, केयरफुल। हमें बहुत ही खबरदार रहना है। इफ यू वांट विक्ट्रीज, अगर आपको विजय चाहिए, then you have to be very careful. तो आपको बहुत ही खबरदार रहना है। Paul says in Ephesians 4th chapter, इसीलिए पौलुस कहता है एफिसी का राष्ट्र पत्र 4 अध्याय 22 से, that put off former way of life. कि तुम पिछले चाल चलन को छोड़ दो। Yes, put off. उसे छोड़ दो। Today we are thinking about putting off. आज हम छोड़ने की बात बोल रहे हैं, पहला चाल चलन भी है in which you will not get victories. जिसमें आपको विजय नहीं मिलेगी। Problem is there. कुछ तो समस्या है। You are believers, you are brethren. आप विश्वासु है। You are in the house of God. आप परमेश्वर के घर में You are हैं। people involved in battle. और आप युद्ध में आप इन्वॉल्व है। You can't have wicked things with you. आपके साथ बुरी चीजें नहीं हो सकती है, You can't keep it. उसे आप रख नहीं सकते। Put it off, former way of life. जो पिछला चाल चलन है उसे निकाल दो। The old self. पुराना मनुष्यत्व। Whose old self? किसका पुराना मनुष्यत्व? I need to get rid of my old self. मुझे मेरे पुराने त्व से निकलना है। Old man. पुराना मनुष्य, Former ways. पिछली चाल चलन, Which is being corrupted by its full deceitful desires. जो बरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। Jesus said, "Na freely you get, freely give." यीशु ने कहा ना कि मुफ्त में तुम्हें मिला, मुफ्त में दो। Then you got it free. आपको फ्री में मिला है, Sow it free. तो फ्री में तुम वो, God will take care of you. परमेश्वर आपको संभालेगा। You need to be alert. आपको बहुत ही जागरूक रहना है। You need to out of that deceitful,
corrupt, deceitful desires. आपको वो भरमाने वाली अभिलाषाओं जो भ्रष्ट कर देती है उसे निकाल देना है। जागरूक रहना है, very dangerous. बहुत ही खतरनाक है। कितने लोगों ने सुना नहीं, put on the full armor of God. कितने लोगों ने नहीं सुना कि परमेश्वर के हथियारों को पहन लो। all. हम सब ने सुना है, But we need to get rid of this old self. पर हमें इस पुराने चाल चलन को छोड़ना है। Be renewed in your mind. अपने मन में तरोताजा होना है Put on the new self then. और नएत्व को पहन And लेना that new है। self is created by God in true और righteousness and holiness. सच्चाई में पवित्रता और धार्मिकता परमेश्वर ने बनाई हुई उसे पहनना है। Each one of us हम में से हर एक को should put off falsehood. झूठ को उतार डालना है। Like that we have many things. तो हमारे पास भी बहुत सारी चीजें हैं। And he is saying, put off this falsehood. वो कहता है कि इस झूठे स्वभाव को तुम उतार डालो, Then you will speak truthfully to his neighbor. तभी तुम पड़ोसी से सच्चाई से बात कर सकते हो। Because we all are members of one another. क्योंकि हम तो एक दूसरे के अंग है। Be angry, but not sin. गुस्सा करो पर पाप मत करो। Do not continue in it. उसमें लगातार जारी मत रखो। उसने ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला। अरे ऐसा बोला, तू क्या किया? ऐसा बोला बोले तो You will leave your house and run away. What? क्या आप अपने घर को छोड़कर चले जाएंगे क्या? You will work for your house. आप अपने घर के लिए काम करेंगे। कधी वैशालीने तुला वाईट नाही बोलला का? मग का जायचं वैशालीकडे? My sister. मेरी बहन, ते कळतं आपल्याला. वो समझता है हमें, And we don't know for one another. और हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है। We don't know this is the house of God. हम नहीं जानते कि ये परमेश्वर का घर है। Don't continue in that anger. That is wrong. उस गुस्से में लगातार जारी मत रखो। Forget about it. उसे भूल जाओ, Leave it. उसे छोड़ दो, Put it off. उसे उतार दो। Here is it. The one who is stealing, no, steal no more. और यहाँ पे वो कहता है कि जो चोरी करता है ना, चोरी मत But करो, work. पर काम करो। Why to work? क्यों काम करो? Why to do good things with your own hands? अपने हाथों से अच्छे कामों को क्यों करो? To give someone who is in need. उनको देने के लिए काम करते हैं हम लोग, जो जरूरत में है। हमारा काम करने का सोच अलग है। Our God gave everything to us. हमारे परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया He's है। a good God. वो अच्छा परमेश्वर है। If you want victories, अगर आपको विजय चाहिए you have to be very careful. तो आपको बहुत ही खबरदार रहना है। Paul says in 29th verse, पौलुस कहता है 29 वचन में, let no corrupt communication proceed out of your mouth. कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। मुंह क्यों दिया है? गंदा नहीं बोलने के लिए। We need to think, हमें सोचना है, meditate. मनन करना है। What I am saying. मैं क्या कर रहा हूँ? त्यांनी बोलला मी पण बोलली. अरे त्यांनी बोलला मी पण उसने बोलली. बोला मैं भी बोल दिया। देवाने शिकवलं का? क्या परमेश्वर ने सिखाया क्या? Think. आपको सोचना चाहिए। Let no corrupt communication proceed out of your mouth. कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। You want victories, no? आपको विजय चाहिए ना? अरे काय शिकवतात तुम्ही? ते कापून मारून निघून जाणार, तेव्हापर्यंत बघत जायचं का? निघू दे, निकलने दो, मारू दे, मारने दो, त्यांना जयोत्सव करू दे. उसे जय मनाने दो। प्रभूला माहित आहे कसं पाडून टाकायचं. परमेश्वर को मालूम है कि कैसे करना है। बिफोर डाउनफॉल, नीचे गिरने से पहले प्राइड कम्स, घमंड आता है, बट बिफोर एक्सॉल्टेशन, पर उठने से पहले humbleness comes. नम्रता आती है। That's why Peter said, इसीलिए पतरस कहता है, therefore, dear brethren, इसीलिए हे मेरे भाइयों, be humble in the powerful hand of God. परमेश्वर Under के the सामर्थशाली हाथ के नीचे तुम नम्र रहो। You are under the hand of God.
आप परमेश्वर के हाथ के नीचे हैं And God will exalt you in due time. और सही समय पर परमेश्वर आपको उठाएगा। Put off bad talks from your mouth. आपके मुंह से बुरी बातों को निकाल दो। Only speak that only which will help other. वही बोलो जो दूसरों को मदद हो सके। लेकिन अपन बोलता क्यों? अपने को मदद होने के लिए बोलता है। नको रे ना बाबा, सर्वांना जगू द्या, सबको जीने दो। माझा पोट मेला तरी चालेल, मेरा पेट मर गया तो भी चलेगा, तो मला बघणार. वो मुझे देखेगा। What a wonderful word. क्या तो अद्भुत वचन If है। you speak अगर तुम बोलो, speak that only वही बोलो which is so needful and helpful to that person. जो उस व्यक्ति के लिए बहुत ही उन्नति का और फायदेमंद हो, ऐसे वचन को तुम बोलो। It will bring grace upon that brother. वो उस भाई के ऊपर अनुग्रह को It लाएगा। will bring grace upon that sister. वो सुनने वाले पर, उस बहन के ऊपर अनुग्रह को लाएगा। Do not grieve the Holy Ghost. पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। Why you know? आप जानते हैं He gives victories. क्योंकि वह जो है वही हमें विजय देता है ना? कौन हम लोग को जय देता है? पवित्र आत्मा। How can we give thanks to him? हम कैसे उसे धन्यवाद दे सकते हैं? Just by obeying him. केवल उसकी आज्ञा का पालन करते Just हुए, by not grieving the Holy Ghost. पवित्र आत्मा को शोकित न करते हुए। My father used to say, मेरा पापा बोलता था, wait man, रुक जा, wait. रुक जा। Huh? मैं कहता था नहीं, कळत नाही डोक्याला काही. समझता नहीं था। To grieve father, पिता को शोकित करना, grieve mother. माँ को शोकित करना, And we are so learned. और हमने इतना सीखा है, We grieve the Holy Ghost. हम पवित्र आत्मा को भी शोकित करते हैं। We don't understand that we are grieving the Lord. हम नहीं समझते कि हम प्रभु को शोकित कर The रहे one हैं। who will give victories to us. वो जो हमें विजय देता है। Your God is great. पर आपका परमेश्वर बहुत ही अच्छा He will है। fight the fight. वो युद्ध को लड़ता है, He will stand for you. वो आपके लिए खड़ा रहता है। You just wait on him. आप सिर्फ उसके ऊपर रुके रहे। Don't grieve the Holy Ghost. पवित्र आत्मा को शोकित न करें। He will give you victories. वो आपको विजय देगा, Victories comes from him. और विजय उसकी ओर से आती है। With him we are sealed. उसके साथ मुहर लगाई So है। take care of yourself. तो अपने आप को संभालो Get rid of all bitterness. और हर कड़वाहट से छुटकारा पाओ, तो दूर कर दो। शेतीने होय ना काय म्हणतात ते काय काढून फेकतो आपण? Weeds. Who will throw? Enemy. कौन उसे फेंकेगा? If you जो will keep that, then अगर हम उसे वहीं पर रख दे तो work out. काम करो, Take care. संभालो, Remove this bitterness. इस कड़वाहट को निकाल दो। You will have victories, victories. आपको विजय प्राप्त You will see a होगी। great freedom, आप बहुत बड़े छुटकारे को देखेंगे। Joy in your heart. आपके हृदय में आनंद। And you will sing this. कुछ मिले या ना मिले, आप ये गीत गाओगे। प्रभु की स्तुति हो, वह बड़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो. First put off your malice. पर पहले अपनी कड़वाहट को तो निकाल दो, Put out all wrong things. अपने गलत चीजों को तो निकाल दो। Slander, outcry with all form of malice. सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब वैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। Will not work on this. अगर आप इन पे काम नहीं करोगे Then there is a ground. तो वहाँ पर वो पकड़ लेगा। Ground for the Satan. शैतान के लिए वो जगह मिल जाएगी, Ground for the enemy. दुश्मन के लिए जगह बन जाएगी। Pest controls. पेस्ट कंट्रोल, They say वो कहते हैं your house is nice, आपका घर बहुत अच्छा है। I said why? मैं पूछता हूँ क्यों? I saw the first house very clean. वो कहते हैं पहला घर हमने देखा इतना साफ सुथरा, That will keep your house away from cockroach. उसकी वजह से आप- आपके घर में कॉकरोचेस नहीं आएंगे। फेंकेगा तो बेड पे बैठ के रैट भी आएगा. बेड पे बैठ के फेंकेगा तो चूहा भी आएगा। We need to take care.
हमें संभालना है। Say my house. बोलिए मेरा घर, Say my house. मेरा घर। Be kind. आप दयालु रहे, Tender-hearted. नम्र स्वभाव के, Forgive one another. एक दूसरे को क्षमा करने वाले, God forgave you. क्योंकि परमेश्वर ने आपको क्षमा किया। We know na, in हम- Joshua 7th chapter हम जानते हैं यहोशू 7वां अध्याय, what Achan did. आकान ने क्या किया। You know the story of Achan. आप आकान के कहानी को जानते हैं। Israel was going to fight. इज़राइल जो है युद्ध करने जा रहा था They were getting defeated. और वो हार रहे थे। They increased their forces. अपने बल को जब सैन्य को बढ़ा रहे They थे, went out. बाहर गए, They fought. वो लड़ाई किए, They lost. फिर भी वो युद्ध को They हार बैठे। doubled their forces. अपने सेना को दुगना किया, They went out. बाहर गए, They fought. वो युद्ध किए, They lost. फिर भी वो युद्ध को हार गए। Why? क्यों? Well, it's not by might, not power, but by my spirit, says the Lord. It's not by might, not power, but by my spirit, says the Lord. न सामर्थ्य से, न बल से, परंतु किससे कहता है? न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा से आत्मा के कहता है। द्वारा। Your victories, आपकी विजय, your battles आपकी युद्ध is not depend upon the people you increase, the knowledge you increase. आपका युद्ध अगर आप सैन्य को दुगना आपका करने में सैन्य दुगना करने में या आपका ज्ञान बढ़ाने में या आपका ज्ञान बढ़ाने में या अच्छा प्रचार करने में आपकी जीत नहीं हो सकती। नहीं, इट्स इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो परमेश्वर की उपस्थिति में है। हालेलुया। हालेलुया। गॉड वांट्स टू ब्लेस यू विद विक्ट्रीज। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है विजयों से। ही डोंट वांट टू सी यू डिफीटेड। वो नहीं चाहता कि आप हार जाए। व्हाट आकान डिड? आकान ने क्या किया? He hid all silver, good clothes in his house. उसने सब अच्छे अच्छे वस्त्र जो है चांदी सब कुछ अपने घर में छुपा कर रखा। What God told? परमेश्वर ने क्या कहा? Destroy it. नाश कर दे, Burn it. उसे आग लगा दे। You want victories? आपको जय चाहिए So what you should do? तो क्या करना है? Destroy everything that gives place to enemy. हर उस चीज को नाश कर दे जिससे दुष्ट को जगह मिल जाए मिलने कोई भी वाली चीज है उसको क्या करने का? नाश कर देने का। किधर भी खाना फेंके तो क्या होगा? रैट्स में काम, चूहे Termites आ में काम। सकते हैं और कीड़े आ सकते हैं। क्लीनिनेस, सफाई, क्लीन योरसेल्फ, अपने आप को साफ करो, गेट रीड ऑफ दैट कविचियसनेस, लोभ को निकाल दो, गेट रीड ऑफ दैट थिंग। उन चीजों से आप छुटकारा पाओ। व्हाट इज हिडन इन योर हार्ट? आपके हृदय में क्या छुपा हुआ है? व्हाट आर हिडन इन योर माइंड? आपके मन में क्या छुपा हुआ है? व्हाट यू हाइड, आप क्या छुपा रहे हो? व्हाट यू हिड, क्या आप छुपा के रखा है? गेट रीड ऑफ इट। उससे आप निकाल दो। जोशुआ सेड, व्हाई वी आर लूजिंग दिस बैटल? यहोशू ने कहा कि हम युद्ध को क्यों हार रहे हैं? दैट मीन्स, इसका मतलब है बोलो युद्ध युद्ध हारते नहीं है। हारते नहीं है। बोलो युद्ध युद्ध हारते नहीं है। हारते नहीं है। बोलो मैं मैं युद्ध हारना नहीं चाहिए। हारना नहीं चाहिए। बोलो प्रभु के लोग प्रभु के लोग युद्ध हारना नहीं चाहिए। हारना नहीं चाहिए। गॉड कैन, परमेश्वर कर सकता है। ट्रस्ट गॉड। परमेश्वर पे भरोसा नाउ कर। आल्सो टाइम इज नॉट गॉन। अभी भी समय नहीं गया है। वेट ऑन गॉड। परमेश्वर पे रुका रहे। रिमूव योर आईज, अपने आँख को निकालो, pluck it out. उखाड़ दो। If it makes you to sin, अगर वो आपको पाप करने लगा, chop your hand. आपके हाथ को काट डालो। If it is making you to pulling you to sin, अगर वो हाथ आपको पाप कराता है cut off your limbs. आपके अंगों को काट दो। If it is pulling you to sin, अगर वो आपको पाप करने लगाता है तो Jesus said, "No, it is better to go without limbs to." Enemy doesn't like you to be victorious. दुश्मन नहीं चाहता कि आप विजयशाली हो। He doesn't want you to be victorious in your life. वो नहीं चाहता कि आप आपके जीवन में कभी विजयशाली रहो। He wants to see you defeated.
वो हमेशा आपको हारा हुआ देखना चाहता है। That's what Jesus said. इसीलिए यीशु ने कहा, Satan comes शैतान आता है to steal, चोरी करने, to kill, घात करने and to destroy. और नाश करने। So that's why he said, इसीलिए वो उसने कहा, get rid of all wicked things. सारी बुरी बातों से तुम छुटकारा पाओ। Hakan, आकान, what you did? तूने क्या किया? He hid उसने छुपा कर रखा, the defeat inside. हार को अंदर छुपा कर रखा। There is a defeat inside that secret covetousness. और वो रहस्यमय लोभ के रहस्यमय अंदर लोभ के अंदर हार छुपी हुई थी। we try to hide, हम छुपाने की कोशिश करते but हैं, because of us many people face defeat. पर हमारे कारण बहुत सारे लोग हार जाते हैं। We have to take care. हमें संभालना है, We have to destroy that things. हमें उन चीजों को नाश करना है। Don't keep it. उसे रखो मत। You know Ananias, आप जानते हैं अनन्या और सफेरा। सफेरा को? है ना? What they did? उन्होंने They क्या किया? sold the part of their property. उन्होंने अपने संपत्ति का कुछ भाग बेच दिया। Then, with agreement in husband-wife, पति पत्नी में सहमति होकर what they did? उन्होंने क्या किया? They brought the portion of it to the apostles. उसका कुछ भाग प्रेरितों के पास लेके आए। Why they brought? क्यों लेकर आए? Who told them to bring? किसने उन्हें कहा? किसने बोला दायित्व दो, दशवांश दो, ऑफरिंग दो? कौन बोला? हाँ? क्यों लाते हो? और लाया तो किस नियत से लाया? This God is God who looks at your heart. ये परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आपके हृदय में देखता है। Nothing is hidden from him. उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। Why they brought? वो क्यों लाए? Why they faced death? उन्होंने मृत्यु का सामना क्यों किया? देने से कोई मारेगा क्या? वो मरे। उनका देना में गड़बड़ी था। There was a wickedness in them. उनके अंदर दुष्टता थी। They lied to the Holy Ghost. वो पवित्र आत्मा को उन्होंने झूठ बोला। They did wickedness. उन्होंने दुष्टता की। They wanted a big name, उन्हें बड़ा नाम चाहिए था, fame. मशहूरी। God knows your heart, परमेश्वर give? आपके हृदय को जानता है। how you give, आप कैसे देते हैं, why you give, क्यों देते हैं, what is the thought behind that giving, और उस देने के पीछे क्या विचार है। why you blame, आप क्यों दोष डालते हैं, why you speak in that style. उस स्टाइल में आप कैसे क्यों बोलते हैं। God knows everything. परमेश्वर सब कुछ जानता है। In Deuteronomy 7 chapter, व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय, he said, destroy all their images. उसने कहा उनकी सारी मूर्तियों को नाश कर दे। Do not covet their silver and gold. उनके चांदी और सोने में लोभ मत कर, Destroy it. नाश कर दे। Whatever is of enemy, जो कुछ दुश्मन का है destroy it. उसे नाश कर दे। Whatever detestable things are there, हर एक वो चीज जो घिनौनी वस्तु, जो कुछ गॉड को घिनौना लगता है, things that ensnare you, जो कुछ आपको फंसा लेता है, फंसा लेता है, वो सारी चीजें get rid of it. उसे निकाल दो। What to remove from me, you know ना? मुझ में से क्या निकालना है आप जानते हैं ना। We need to take care of ourselves. हमें खुद को देखना है What I should remove from me? कि मुझ में से मैं क्या निकाल दूं, What should I bring it out? मैं क्या निकाल के फेंक दूं। Which is detestable things? कैसी ऐसी घिनौनी वस्तु है, Take it apart. Set it apart for destruction. उसे नाश के लिए फेंक दे। क्या करने का बेटा? नाश के लिए निकाल देने का। उसका नाश करेगा तो क्या होगा? You will have victories. तो आपको विजय मिलेगी। Let's open Job 28:28. आइए हम अय्यूब 28:28 खोले। He said to man, behold, the fear of the Lord, that is wisdom, and turn away from evil is understanding. तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। No, get up.
अब आपको उठना है, Raise up. उठ जाओ अभी, Don't fall. गिरो मत, Take care of yourself. अपने आप को संभालो। Psalmist says, भजन संहिता लिखने वाला कहता है, blessed is the man who walks not in the counsel of wicked. धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट की मार्ग में नहीं चलता, Walks not. वो चलता नहीं है, He is blessed. वो आशीषित है। We kill our own brother, our own sister. हम अपने ही भाई बहन को मार डालते We हैं, kill our own people. हम हमारे ही लोगों को We मार get डालते wounded हैं, and hurted by our own people. हमारे खुद के लोगों से ही हम जख्मी हो जाते हैं। नहीं चलेगा तो धन्य है, और जिस अच्छे मार्ग में चलेगा तो महाधन्य है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। Blessed is the man who stands not in the path of sinners. धन्य है वह पुरुष जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा रहता। Where you stand, आप कहाँ पर खड़े होते हो, where you walk, कहाँ पर चलते हो, what you see. क्या आप देखते हो। Blessed is the man धन्य है वह पुरुष who sits not in the seat of mockers. जो टट्टा करने की मंडली में नहीं बैठता। Where you sit. आप कहाँ पर बैठते If you हैं? sit not there, अगर आप वहाँ पर नहीं बैठते you are blessed. तो आप धन्य हैं। How you can become blessed? आप धन्य कैसे बन सकते? Remove the wicked things. दुष्ट बातों को निकाल दो, Get rid of it. उससे छुटकारा पाओ। Then you delight in God's word. तब आप परमेश्वर के वचन में रुचि रखो, Meditate on it day and night. उस पर दिन और रात मनन करो। Delight on God's word. परमेश्वर के वचन में रुचि रखो। Then you will be like a tree planted in the riverside. तब तुम वह वृक्ष के समान रहोगे जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। You will give your fruit in आप- season and out season. अपनी ऋतु में फल दोगे। I am telling you, पर मैं आपसे ये कहता हूँ, don't do these things. ये सारी बातों को मत करो। Don't stand where the sinners are. वहाँ पर खड़े मत रहो जहाँ पर पापी है, Don't walk among the wickeds और दुष्टों के बीच में चलो मत, in their paths. उनके युक्तियों पर। Don't sit among the scorners. टट्टा करने वालों के साथ बैठो मत, You will be blessed. आप आश्रित हो जाएंगे। You need to avoid many things. आपको बहुत सारी चीजों को निकाल देना है। You need to keep away yourself from wickedness. आपको अपने आप से दुष्टता को दूर करना है Keep your tongue from evil. और बुराई से अपनी जुबान को बचाओ। Victory चाहिए कि नहीं? If you want victory अगर आपको विजय चाहिए in the battles, युद्ध में, then take care of your tongue. तो आपकी जुबान को संभालो। है ना, टंग बहुत बोलता, टप 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 टप, बहुत डेंजर है टंग। कौन आग लावली? तिनी आग लावली। टंग डेंजर। जुबान जो है बहुत ही खतरनाक होती है। कीप योर टंग अवे फ्रॉम बुराई से अपनी जुबान को संभालो योर लिप्स फ्रॉम डिसीटफुल स्पीच। और आपके होठ फसावट की बातों से दूर रखो। है ना, अपना वोट क्या बोल रहा है? डिसीट डिसीट डिसीट। कितने को फंसाए? टर्न अवे फ्रॉम इविल एंड डू गुड। बुराई से फिर जाओ और और अच्छा अच्छा करो। सीक पीस एंड परस्यू इट। शांति को खोजो और पीछे लगे रहो। कितने लोग शांति चाहते हैं? आपको शांति मिलेगा, आप परमेश्वर के बच्चे कहलाओगे। सीक पीस, शांति को खोजो, पीस, शांति को, पीस। शांति को। हर जगह गड़बड़, हर जगह युद्ध, हर जगह फाइट। God will bless you. परमेश्वर आपको आशीष देगा। The eyes of the Lord are on righteous, परमेश्वर की आंखें धर्मी पर है and his ears are inclined to their cry. उसके कान उनकी आवाज, उनके रोने, उनके पुकार की तरफ लगे हुए हैं। Oh righteous, हे धर्मी, who got rid of wicked things, जो बुराई की चीजों से अपने आप को दूर रखा। You're blessed. आप धन्य हैं। But the face of the Lord is against evil.
परमेश्वर का मुख दुष्ट के विरुद्ध है. He will wipe them out. वो उन्हें मिटा देगा. Righteous cry. धर्मी रोते हैं यहोवा सुनता है. और यहोवा सुनता है. Which prayer of yours is unheard? ऐसा कौन सी प्रार्थना है आपकी जो उसने अनसुनी की? How can he और वो कैसे कर सकता है? hear or hear not the prayers of righteous? वो कैसा कर सकता है कि धर्मी की प्रार्थना वो न सुने? है ना? Elijah cried एलिया रोया and God heard. और परमेश्वर ने उसकी सुनी. He stopped rain for 3.5 years. और 3.5 साल बारिश को रोक दिया. You will cry. आप रोएंगे, God पुकारेंगे will hear your prayer. और परमेश्वर आपके पुकार को सुनेगा. God will answer your prayers. परमेश्वर आपके पुकार का उत्तर देगा. He will answer your prayer. वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा. And this is a proof that He will deliver them from all troubles. और ये सबूत है कि वो उन्हें हर मुसीबतों से छुटकारा देगा. मेरी बहनें, मेरे भाई प्रार्थना करते हैं God hears. और परमेश्वर सुनता है He delivers. और वो मुझे छुटकारा देता है. Righteous pray धर्मी प्रार्थना करते हैं and God delivers them. और परमेश्वर उन्हें छुटकारा He देता है. delivers them from all troubles. वो उन्हें हर मुसीबत से छुड़ाता है. Battlefield. हम जो है युद्ध के मैदान में हैं. God is with us. परमेश्वर हमारे साथ He है. is near to the broken-hearted. वो टूटे हुए मन वालों के साथ है. Many are the afflictions of the righteous. और धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है. एक नहीं, दो नहीं, बहुत. बहुत. For this reason we chose God out. क्या इसलिए हमने परमेश्वर को चुना क्या? Yes. हाँ. He will deliver us. वो हमें छुटकारा देगा. He will deliver us from all of them. परमेश्वर हमें उन सारी विपत्तियों से छुटकारा देगा. But He delivers. वो हमें छुटकारा देगा. He is my King. वो मेरा राजा है. He will give victories to us. वो हमें विजय देगा. That's what Isaiah says इसीलिए यशायाह कहता है in 55:7-13. 53:7-13 Let the wicked forsake his ways, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to God, that he may have compassion to a God. He may have compassion and to a God, for he will freely pardon. दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे. वह उस पर दया करेगा. वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा. Let's हालेलुया. run to him. तो आइए हम उसके पास आए. Take away every thoughts, हर विचार को छोड़ दे. bad thoughts, हर बुरे विचार को, unrighteous thoughts. हर अधर्मी विचार You को. want to face victories? आपको जय पाना है. You want to enjoy victories? आपको जय को का आनंद उठाना है. Father, we thank you. पिताजी हम धन्यवाद करते We हैं. bless you हम तुझे धन्य कहते for हैं your good God. क्योंकि तू अच्छा प्रभु You है. are the one who is mindful of us. तू वो है जिसका मन हमसे भरा हुआ है. And you are the one who gives us victories. और तू वो परमेश्वर है जो हमें विजय देता Today है. we come to you, Lord, आज हम तेरे पास आते हैं प्रभु जी. throwing all old man, हर पुराने मनुष्यता को छोड़कर उतार कर old me, मैं जो पुराना था, all wickedness, हर दुष्टता, all filth, हर गंदगी, all evil, हर बुराई, all malice, हर वैर भाव, everything which is falsehood, हर झूठ we come to your throne grace. हम उतार कर तेरे अनुग्रहशाली सिंहासन के तले आते हैं. We remove these unrighteous thoughts. हम अधर्मी विचारों को छोड़ देते Let हैं. your thoughts, तेरे विचार which are so high, जो इतने ऊंचे हैं, which are so good, जो इतने अच्छे which हैं, are so awesome, जो इतने अद्भुत है, let it be for us. वो हमारे लिए हो. We welcome you. हम तेरा स्वागत करते We हैं प्रभु magnify जी. your name. हम तेरे नाम को Even though your उठाते हैं. thoughts are so high, जबकि तेरे विचार इतने बड़े हैं but और Lord, ऊंचे हैं, we are here. पर हम तेरे
पास आते हैं। Accomplish what you please in us. पूरा कर जो तेरी प्रसन्नता है हमारे लिए। Prosper your thoughts in us. तेरे विचारों को हम में होने दे प्रभु जी। We thank you. हम धन्यवाद करते We हैं, worship you, Lord. तेरी आराधना Let करते all these children be blessed. ये सारे बच्चे आशीषित हो जाए। Let your mercies rest upon them. तेरी दया उन पर आए, Let your grace envelop them. तेरा अनुग्रह उनको ढक कर Let रखे। every wicked schemes which are against them be shattered, be destroyed. और हर एक जो बुरी योजनाएं उनके विरुद्ध है वो तितर बितर हो जाए। Every schemes of the enemy be removed, be cast दुश्मन out. की हर एक चालें वो नाश हो जाए। Let your children come to you, Lord. तेरे बच्चे तेरे पास आ Let them be सके well protected. और वो सुरक्षित रहे, Let them be equipped, Lord. वो तैयार हो Today जाए। we stand in the gap and pray. आज हम उस खंड में खड़े होते हैं और Whatever प्रार्थना cause करते may they may be stuck in, हैं। किसी भी कारण से अगर वो अटक गए हैं, let the chains be shattered and broken down into pieces. जंजीरें टूट जाए Let your children prosper. और तेरे बच्चे उन्नति पाए। I thank for everyone. मैं हर एक के लिए धन्यवाद Let करता your हूँ। peace reign in them. तेरी शांति उनमें राज्य Let करे, your love have place in them. तेरा प्रेम उनके ऊपर आए, Let them be shielded and protected. वो सुरक्षा पाए और तू उनकी ढाल बने Let them enjoy victories after victories, Lord. और वो विजय के ऊपर जय प्राप्त Let them करे enjoy your very presence, Lord. और वो तेरी खास उपस्थिति का आनंद उठाए। We thank you for them. हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू उनके लिए Let है। there be no more thorns in their lives. उनके जीवन में और कांटे न रहे। Father, we thank you पिताजी हम धन्यवाद करते हैं for blessing them, इन्हें आशीष देने के लिए, taking care of them. इनको संभालने के Let लिए। every cry they cry, हर जो पुकारते हैं वो, every prayer they pray, हर प्रार्थना जो प्रार्थना करते हैं be answered gloriously, Lord. तेरी महिमा से पूरा हो जाए। Thank you for healing everyone. धन्यवाद करते हैं कि तूने हर एक को चंगा किया। Thank you for healing everyone here, Lord. यहाँ पे मौजूद हर एक के लिए धन्यवाद Thank you for करते your हैं touch in their lives, Lord. और इनके ऊपर, इनके जीवन के ऊपर तेरे स्पर्श के लिए धन्यवाद करते हैं। Thank you for blessing each and everyone spiritually, mentally, physically. हर एक को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से तूने आशीष किया। हम धन्यवाद करते We हैं। all bow down before you. हम सब तेरे सामने झुकते हैं। You are our God. तू हमारा परमेश्वर है। We thank you. हम धन्यवाद करते In हैं। Jesus' loving name we pray. यीशु के प्यारे नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।